Now series resonate circuit. So a series resonate circuit is a LCR circuit. Is a LCR circuit in which natural frequency of circuit is equal to frequency of applied AC voltage. Frequency of applied AC voltage. So now all of you see here. In the previous lectures, I have told that if there is any circuit which is consisting inductor and capacitor. Inductor is this. This is represented by this way, and capacitor. Then in between inductor and capacitor, there will be an exchange of energy. Suppose this is a circuit which is consisting inductor and capacitor, and it is connected across a source of AC EMF, AC voltage, V equals to V naught sine omega t. Then what will happen? There will be the here energy will store when current will pass through it. Energy will store in what form? Energy stores in the form of magnetic energy. Magnetic energy. And here it stores in the form of electric energy, electric potential energy, in the form of electric field. It is clear. So there will be a interconversion of magnetic energy into electric energy and electric energy into magnetic energy. Magnetic energy इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. इट्स क्लियर? Means if there is any circuit which is consisting inductor and capacitor and is connected across a source of AC voltage, then in this circuit what will happen? There will be an interconversion of energy from this to this and this to this, as well as because of the resistance, because the resistance is the integral part. Resistance किसी सर्किट का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. आए समझे? आइडियल सर्किट जिनको हम प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर सकते हैं, केवल उनमें ये मान लिया जाता है कि R इक्वल्स टू 0. इसलिए क्या है, कोई भी प्योर एलसी सर्किट केवल इमेजिन किया जा सकता है, प्रैक्टिकली में एग्जिस्ट नहीं करता है. प्योर एलसी सर्किट, it can be only imagined. It can be only imagined. Cannot be realized in actual practice. Cannot be realized in actual practice. एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली में ऐसा कोई सर्किट होता नहीं है. So if there is any LCR circuit or any LC circuit, then in that there will be the interconversion of magnetic energy into electrical and electrical energy into magnetic energy. It is clear? If there is some resistance, then because of that there will be some loss of energy also. Loss of energy.
during each interconversion, when magnetic changes into electrical and when electrical changes into magnetic, there will be the loss of energy because of the resistance. Resistance के कारण क्या होगा? Loss of energy होगा. अब ये जो एनर्जी का चेंज होता है वो किस फ्रीक्वेंसी से होता है? What will be the frequency of that? Frequency with which this change takes place. So that is known as the frequency of LC circuit, natural frequency of LC circuit. This change of interconversion. This change of interconversion of energy will take place with a frequency called natural frequency of LC circuit. LC circuit or LCR circuit. It's clear. And what is that natural frequency? It is given by F equals to 1/2 pi root LC. ये क्या है? किसी ने LC सर्किट की क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. उसमें चाहे इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो या क्या है? पैरेलल में कनेक्ट हो. Whether they are connected in series or in parallel, this is the frequency with which the interconversion of energy take place. It is clear? ये दोनों कंपोनेंट चाहे सीरीज में कनेक्ट हो या क्या है? पैरेलल में कनेक्ट हो, ये इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी दोनों केस में होगा और इसी फ्रीक्वेंसी से होगा. This frequency is known as the natural frequency. कैसी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? Natural frequency. Natural frequency of LC circuit. This is called the natural frequency of LC circuit. This point is clear? बोलें. Yes, sir. This is called the natural frequency of LC circuit. जो हमारा रेडियो सेट होता है, सब लोगों ने देखा होगा, जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, रेडियो कहते हैं, उसमें यहाँ पर एक नाब होती है. उस नाब को हम रोटेट करते हैं. जब नाब को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? वो पॉइंटर मूव करता है इधर से इधर, इधर, ऐसे पॉइंटर ये इस तरीके से मूव करता है. होता क्या है? जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या है? इससे एक थ्रेड कनेक्टेड होता है, विच इज हुज अदर एंड. इस नाब से एक थ्रेड कनेक्टेड होता है जिसका दूसरा एंड कहां पर कनेक्ट होता है? एक वेरिएबल कैपेसिटर में. वेरिएबल कैपेसिटर मतलब वो क्या है? हम जैसे दिखाएं, जैसे क्या है? ये कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स है, समझे? और इस प्लेट से ये थ्रेड कनेक्टेड है. इस प्लेट से ये थ्रेड क्या है? कनेक्टेड है. जब हम क्या है? ये नाब को रोटेट करेंगे तो ये क्या होगी? ये प्लेट रोटेट होगी. जब प्लेट रोटेट होगी तो कॉमन एरिया बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? चेंज होगा. सी क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ए क्या है? इट इज द कॉमन एरिया इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स. इस मोमेंट पर क्या है? मैक्सिमम एरिया कॉमन है. पर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कॉमन एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा. होगा कि नहीं? जब हम इस नाब को रोटेट करेंगे तो ये एक प्लेट क्या करेगी? रोटेट करेगी. बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन व्हाट विल हैपन? द कॉमन एरिया इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स विल डिक्रीज. एंड व्हेन कॉमन एरिया इन बिटवीन बोथ द प्लेट्स विल चेंज, capacitance will change.
कैपेसिटेंस चेंज होगी तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब रेडियो सेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी रेडियो वेव्स प्रेजेंट है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो रेडियो सिग्नल्स हैं, जिस रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी उसको ये क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, उसको ये इंटरसेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, और उसका ब्रॉडकास्ट हमको क्या है, सुनाई देने लगेगा। आए समझे? इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस सब लोग फिर से समझ ले। रेडियो सेट में जो ये नाब होती है, ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट रोटेट्स द one of the plate of the capacitor. When it will rotate one of the plate of the capacitor, what will happen? The common area between the plates will change. When that area will change, what will happen? Its capacitance will also change. When capacitance changes, then its natural frequency will be changed. This point is clear? And when the natural frequency will change, so see here, when the natural frequency of radio set becomes equals to the frequency of any radio signal present in the atmosphere, when its natural frequency becomes equals to the frequency of any radio signal present in the atmosphere, then it will intercept to that signal. उस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, उसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर अधिक करंट इंड्यूस होगी, और जब अधिक करंट इंड्यूस होगी तो वो ब्रॉडकास्ट हमको क्या है, सुनाई देगा। आए समझे? यही क्या है, रेडियो सेट का फंक्शन है। तो अब सब लोग फिर से एक बार देख ले जो चीज हम बताना चाह रहे हैं अभी। अगर कोई एलसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वो चाहे सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल में कनेक्ट हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी होगा। ऐसा साथ में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। साथ में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऐसा ये जो एनर्जी का चेंज होगा वो किस फ्रीक्वेंसी से होता है, दैट इज with this frequency, which is called the natural frequency of LC circuit. This point is clear? बताएं। अब देख लो सीरीज रिजोनेट सर्किट क्या है, जिसको हम बताने के लिए स्टार्ट किए थे। इस सीरीज रिजोनेट सर्किट इज ए LCR सर्किट, मतलब L और C तो होने ही चाहिए, मतलब LR सर्किट में रिजोनेंस नहीं हो सकता है, CR सर्किट में रिजोनेंस नहीं हो सकता है, L और C तो ये होने ही चाहिए, बिना इनके रिजोनेंस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन ये है। आए समझे? हमारी बात सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो देख लो, अगर क्या है, कोई सीरीज रिजोनेट सर्किट है इन विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैचेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC वोल्टेज, देन व्हाट विल हैपन, दैट सर्किट विल बी इन द रिजोनेंस। वो सर्किट में क्या होगा, रिजोनेंस होगा ना। रिजोनेंस होगा, इसका मीनिंग क्या है वो हम बता रहे हैं ना। तुमने देखा है मैकेनिकल वेव्स में जब रिजोनेंस होता है तो क्या बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ वेव बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव बढ़ जाएगी मतलब क्या होगी, अधिक एनर्जी ट्रांसमिट होगी, अधिक एनर्जी ट्रांसमिट होगी। आए समझे? वही चीज यहां भी होगा। आए समझे? तो अगर कोई हमारे कोर्स में केवल सीरीज रिजोनेट सर्किट है, in series resonant circuit is a LCR circuit in which the natural frequency of
circuit is equal to the frequency of applied AC voltage. I said frequency of applied AC voltage. This point is clear. Now see here. अब सब लोग देख लो ये होगा कब, ये चीज हम बताने जा रहे हैं. In a LCR circuit, रिजोनेंस की कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? F से, इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, और इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F नॉट से. ये सिंबल जाने रहो, तुम्हारी बुक में यही यूज की गया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज, अप्लाइड एसी वोल्टेज F, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी F नॉट. आए समझे? तो अब देख लो, जब ये होगा तब रिजोनेंस होगा. इन ए LCR सर्किट resonance will take place. Resonance will take place. मतलब ये चीज कब होगी वो हम बताने जा रहे हैं. ये कब होगा? So in a LCR circuit, resonance will take place when XL equals to XC. बताओ XL क्या है? कौन नहीं बताएगा? बताओ. श्वेता सिंह राठौर, SSR. श्वेता, यस सर. क्या ये एक्सेल क्या है? अनुष्का, सुभाव, एक्सेल क्या है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस. जरा इस सब्जी वाले को रोको और अंदर बता देना ना. इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटिव reactance. This is inductive reactance and the capacitive reactance. Inductive reactance क्या होता है? XL equals to omega L. मतलब क्या होता है? 2 pi FL. Capacitive reactance क्या होता है? XC equals to 1 upon omega C equals to 1 upon 2 pi FC. रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दीज इन द फ्लो ऑफ करंट. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दीज एलिमेंट्स इन द फ्लो ऑफ करंट. आए समझे? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब F increases, what happens? XL increases, but XC decreases. XL increases but XC decreases. XL बढ़ जाएगा और XC क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ये चीज कब होती है ये रिजोनेंस वाली? जब XL XC के बराबर हो जाएगा. अब जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो जरा इनकी वैल्यू रखो. XL तो तुम्हारा क्या है? 2 pi FL and XC is how much? 1 upon 2 pi FC. इस पूरे को इधर ले आए. 2 pi FL into 2 pi FC equals to 1. मतलब क्या हो जाएगा? 4 pi square F square LC equals to 1. It's clear? So what will be F square? 1 upon 4 pi square LC. इस चीज को समझ लो तो हम बताएं.
F square equals to this much. Now when you will take the square root, F square का square root F equals to 1/4 pi square का square root 2 pi, LC का square root LC। आए समझे? अब सब लोग देखें, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज। ये क्या है? ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। मतलब एफ क्या हो जाएगा? एफ नॉट के बराबर होगा। ऐसा, और जब एफ नॉट के बराबर होगा तब क्या होगा? रिजोनेंस होगा, ऑलरेडी बताया। दिस पॉइंट इज क्लियर? आए समझे? Yes, sir. मतलब अगर क्या है, कोई एलसीआर सर्किट है तो उसमें रिजोनेंस कब होगा? जब ये कंडीशन फुलफिल हो। ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? जब ये दोनों बराबर हो, एक्सएल एक्सी के बराबर हो। एक्सएल एक्सी के बराबर होने का मतलब ही यही है, ये चीज है। आए समझे? अब देख लो, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो इंपीडेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंपीडेंस? इंपीडेंस तुमको मालूम है, इंपीडेंस भी क्या है? एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है। इंपीडेंस DAN है कि DEN है, देख लेना ना। इंपीडेंस ऑब्स्ट्रक्शन offered by LCR circuit in flow of current। अब देख लो, इंपीडेंस का फार्मूला क्या है? सबको मालूम होगा, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो होता है। ऐसा है। अब देख लो, इन रिजोनेंस व्हाट विल हैपन? इन रिजोनेंस, जब रिजोनेंस होगा, XL विल बी इक्वल टू XC। XL इज इक्वल टू XC, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा। जब XL XC के बराबर हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया। देन इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। Impedance will be minimum। Impedance minimum होगा, कितना होगा? R के बराबर। And when impedance will be minimum, then current will be maximum। Therefore, current will be maximum। कितनी हो जाएगी? करंट का फार्मूला है I इक्वल्स टू V/Z। तो जब Z मिनिमम है तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। होगी कि नहीं? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Yes. अब देखो, जब ये दोनों बराबर हो गए तो केवल रेजिस्टेंस सर्किट में बचा। मतलब ड्यूरिंग रिजोनेंस सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव। In the resonance condition, circuit will be pure resistive। In resonance condition, circuit will be pure resistive। सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। ऐसा है, इट विल बिकम प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द रिजोनेंस वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज। ड्यूरिंग रिजोनेंस V and I will be in same phase
and when V and I will be in same phase, then the power transmitted will be maximum. क्यों maximum हो जाएगी? क्योंकि करंट मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस केवल R के बराबर है, सो पावर ट्रांसमिटेड will be maximum. क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला क्या है? I स्क्वायर R. तो I क्या है? मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, आई समझे? तो देख लो, वही जैसा कि मैकेनिकल वेव्स के रिजोनेंस में होता था, वहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वेव बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ वेव इज मोर मींस and wave is carrying more amount of energy. Wave is carrying more amount of energy. Here also the same thing will take place. During the resonance, F will become, हम मेन चीजें फिर से बता दे. In a LCR circuit, resonance will take place when this becomes equals to this. Frequency of applied AC voltage becomes equals to the natural frequency of LCR circuit. When it will become equal to this, then both the reactances will become equal. Both the reactances will become equal, then impedance will become minimum, which will be equal to R. Which will be equal to R. Current will become maximum and power transmitted will also be maximum. ये चीज समझ में आ गई? This point is clear? अब सब लोग देख लें, तुम्हारी बुक में ये चीज कहां दी है वो हम तुमको बता दें, उसको बड़ी कायदे से रीड कर लेना ना. रिजोनेंस सर्किट, ये 12, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए. ये है देन दिस, ऐसा ये चीज है, ये पूरा पेज यहां तक, ये सब भी अभी अभी हम इस पर आ रहे हैं ना. अब देख लो, अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें ना, करंट वर्सेज ग्राफ ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ applied AC voltage. देख लो ये ग्राफ कैसा होगा, हम यहां ड्रा कर रहे हैं. ये है और यहां पर हम रेजिस्टेंस. तो देख लो, अभी हमने बताया है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एक्सएल इंक्रीज करता है, एक्ससी डिक्रीज करता है. एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा ना, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ यस हियर एट दिस इज एफ नॉट. एफ नॉट मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल विल बिकम इक्वल टू एक्ससी, जेड विल बी मिनिमम. ये जेड यहां जेड लिखो, जेड विल बी मिनिमम. Z इक्वल्स टू R. ऐसा Z क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा. इस फ्रीक्वेंसी पर XL विल बी इक्वल टू XC. अगर इसी तरीके से हम करंट का ग्राफ ड्रा करें तो वो इसका उल्टा हो जाएगा.
करंट वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा, हम यहां ड्रा किए दे रहे हैं सेपरेटली। ये जो एसी सोर्स है वो वेरिंग एसी सोर्स है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे, ये मतलब इसके फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये एफ नॉट, इस पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम आई, ये क्या है, जेड मिनिमम। आए समझे, ये ग्राफ हो गए। मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम होगी या फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ नॉट, व्हाट विल हैपन, impedance of the circuit will increase. When the frequency is less than f naught or more than f naught, frequency means frequency of applied AC voltage, ये f naught से less होगी या f naught से more होगी, impedance will become more. Impedance will become more and current will become less. करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पर f naught पर क्या है, impedance मिनिमम है, करंट क्या है, मैक्सिमम। दिस पॉइंट इज क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अब देख लो एक चीज और भी, यहां पर एक ये एग्जाम्पल दिया है, सब लोग अपनी बुक को ओपन कर, ये दिया है R equals to 5 ohm, XL equals to XC equals to 20 ohm and VRMS equals to 100 volt। ये वैल्यूज दी हैं, सब लोग देखें, सब लोग देख रहे हैं। Now you can see here what will be the impedance here, who can tell, impedance क्या होगा यहाँ, अपने आप बताओ। देख लो, ये दोनों बराबर है, मतलब इंपीडेंस तो R के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, 5 ओम। करंट कितनी हो जाएगी, IRMS, इट इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। VRMS कितना है, 100 वोल्ट है, जेड कितना, 5, दैट इज 20 एम्पियर। अब हम निकालेंगे VL निकालेंगे, VC निकालेंगे और VR निकालेंगे।